ومنه إباحة النذر للتأمين فإن الخطبة وللسيد ومنه جواز النكاح من غير نفس منافع بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بتلایا گیا ہے کہ مضاربت، عاریت، ودیت، یہ سب چیزیں مشروع ہیں آسانی کے پیش نظر. کس طرح کی آسانی ہے؟ للمشقہ العظیمہ، عظیم مشقت کی وجہ سے اس بات میں کہ ہر شخص انتفاع نہ کرے مگر اپنی ملکیت سے. ہر شخص کس سے کام چلائے؟ صرف اپنی ملکیت سے. بڑا مسئلہ ہوگا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہوتے ہیں. ہوائی جہاز کے مالک ہیں آپ؟ ہاں؟ ہر آدمی کیا کرے؟ ہوائی جہاز خریدے، ہیلی کاپٹر خریدے، ٹرین خریدے، تب سفر کرے کہیں. یعنی اجارہ جائز نہ ہو تو دوسرے کی ملکیت سے آپ استفادہ کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اعارہ کے ذریعے، قرض کے ذریعے، عاریت کے ذریعے. اس طرح سے لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی تھی کس کے ذریعے سے؟ عاریت کے ذریعے. ہم؟ ایک گھر میں سیڑھی ہے، محلے گھر میں، اس محلے بھر میں وہ سیڑھی کام آتی تھی. ایک گھر میں پھاوڑا ہے، پورے محلے میں پھاوڑا بٹتا رہتا تھا. اور ایک کو کہتے ہیں کیا، برما، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، رما. رما کہتے ہیں، یا کچھ جگہوں پہ کیا کہتے ہیں؟ برما. رمبا بھی کہتے ہیں، رمبا. تو اس میں گم بھی ہو جاتا تھا. تو اسی طرح کی چیزوں کو لوگوں نے کہا کہ یہ معاون ہے. کیا ہے؟ معاون. عام استعمال کی چیزیں ہیں، اس کو لوگوں سے روکنا نہیں چاہیے. نفاق کی علامت ہے. اس کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے کہ معاون کو کیا کر لے؟ روک لے. عاریت، اجارہ، قرض، ان سب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہ ہر آدمی فائدہ نہ اٹھائے مگر صرف اپنی ملکیت سے، اور قرض اصول نہ کرے مگر اسی سے جس پر اس کا حق ہے. جس پر اس کا کیا ہے؟ حق ہے. یعنی اس کے بدلے میں شریعت نے کیا مشروع کیا؟ حوالہ. جس پہ آپ کا قرض ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے سے بھی لے سکتے ہیں. وہ کہہ دے بھائی فلاں صاحب سے لے لیجیے. میں نے کل مثال دیا تھا، چیک. پیسہ، سمن تو آپ کے ذمے ہے، لیکن اس سمن کا آپ حوالہ کر دیتے ہیں بینک پہ. لیجیے صاحب، یہ میں لکھ کے دے دے رہا ہوں آپ کو، بینک سے جا کے لے لیجیے. یہ بھی کیا ہے؟ حوالہ ہے. اور آدمی اپنے قرض کو اصول نہ کرے مگر صرف اسی سے جس پر اس کا حق ہے. اگر یہ ہو تو کیا ہوگی؟ دشواری ہوگی. اور اپنا حق نہ لے مگر مکمل طور پہ، یعنی کسی بھی حال میں قرضہ معاف نہ کرے، نہ قرضہ کم کرے. اس کی بنسبت شریعت نے کیا کیا ہے؟ صلح کر لو بھائی. کیا کر لو؟ صلح کر لو. پورا معاف کر دو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ابرا، صلح مطلب کیا ہے؟ کچھ لے دے لو. ابن ابی الحضرت والی روایت ہے، بخاری مسلم سب میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، مسجد نبوی میں کچھ لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی. باہر نکلے، پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا یہ میرا قرض نہیں دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دے دوں گا، بھی ہے نہیں. تو حضور نے کیا کہا؟ آدھا آدھا لے لو. آدھا معاف کر دو، آدھا دے دو. نصف پہ کیا کر لیا؟ ایک طرح سے مصالحت کرا دیا آپ نے. اس میں قرض لینے والے کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے. نہیں ادا کر پاتا ہے آدمی، اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ پورا ادا کر پائے، تو اس سے درخواست کرتا ہے بابا کچھ لے دے کر کے معاملہ سلٹا دو، صلح کر دو. ہاں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ سلٹا دو دیہاتی زبان میں. ہاں؟ تم بھی بولتے ہو. ہاں، نمٹا دو، سلٹا دو. اور وہ اپنے کام کو انجام نہ دے مگر بذات خود. اس میں بھی کیا ہے؟ دشواری ہے.
हर काम आप बजाते खुद अंजाम नहीं दे सकते हैं। अगर अंजाम देना चाहें तो लोग इतना दौड़ाएंगे कि चप्पल घिस जाएगी आपकी। नहीं, इसलिए आजकल कोई काम कराना होता है तो क्या है, वो कौन सेवा है? हाँ, जन सेवा केंद्र। उसको जा करके दे दीजिए आप पैसा, 100 रुपया की जगह 200 रुपया दे दीजिए। वो आपका जो है वो निवास बना करके दे देगा। आप जाएंगे तो दौड़ेंगे, बन नहीं पाएगा, ये कमी है वो कमी है। वो जो है 50 रुपया दे देता है, 50 रुपया अपने रख लेता है, 50 रुपया उसको दे देता है। ये क्या है? तवकील। क्या है? तवकील। तो सबका काम चलता रहता है इसे। जन सेवा केंद्र खुल गया है। हाँ। और अपने काम को अंजाम न दे मगर बजाते खुद। तो ये सब क्या है? दुश्वारियां हैं। फसहल अम्र, शरीयत ने मामले को आसान कर दिया। बेइबाहतिल इंतिफा बिमिल्किल गैर, इंतिफा को जायज करार देकर दूसरी की मिल्कियत से। ऊपर देखिए, ला यंतफिउ इल्ला बिमा हुआ मिल्कुहु, उससे ताल्लुक है किसका? इसका। मामले को आसान कर दिया दूसरे की मिल्कियत से, तो उस इंतफा को जायज करार देकर। ये कैसे होता है? बेतरीक़िल इजारा वल इयारा वल कर्ज। इजारा, इयारा और बतौर कर्ज। आप क्या करते हैं? दूसरे की मिल्कियत से फायदा उठाते हैं। वबिल इस्तिआना बिल गैर, और दूसरे से मदद लेते हैं। वकालत, ईदा, शिरकत और मुसाकात में। साकिब तो था ना अभी, कहाँ चला गया? तो दूसरे से आप मदद लेते हैं, इसका ताल्लुक क्या है? वला यतआता उमूरहु इल्ला बिनफ्सिही, अपना काम क्या करे? बजाते खुद अंजाम दे। ये मुश्किल है। शरीयत ने क्या कहा है? दूसरे से भी आप मदद ले सकते हैं। उसकी क्या शक्ल होगी? वकालत की, वकालत। दूसरी शक्ल है वदीयत। आपके पास कुछ नकद रकम है, सफर में जाना चाहते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। कहाँ 1 लाख 2 लाख रुपया जेब में लिए फिरेंगे आप? या जेवरात हैं, डर है कि ताला बंद करके जाऊंगा चोर चोरी कर लेंगे। क्या करते हैं आप? पड़ोसी के यहाँ रख देते हैं। भाई देखो, 15 20 दिन के बाद मैं आऊंगा तो ले लूंगा। इसी का नाम क्या है? ईदा, वदीयत पर रखना। शिरकत में भी आप दूसरों से मदद लेते हैं। मुसाकात और मुजारात में भी क्या लेते हैं? दूसरों से मदद लेते हैं। वबिल इस्तीफा मिन गैरिल मदयून, और मदयून के अलावा से उसूल करके हवाले में। हवाले में क्या होता है? मदयून के अलावा से अपना कर्ज वसूल करते हैं। तो ला ला यंतफिउ इल्ला बिमा हुआ बिमिल्क, इल्ला बिमा हुआ मिल्कु वला यस्तौफी इल्ला बिमन अलैहि हक़ हुआ। उससे ताल्लुक है इसका, कि और वो कर्ज को उसूल करे मदयून के अलावा से बतौर हवाला। और शरीयत ने दैन के वसीके को जायज करार दिया रेहन और कफील के जरिए। आप दैन पे क्या चाहते हैं? वसीका, एतमाद चाहते हैं कि आपका जो कर्ज है वो मिल जाएगा। उसकी क्या शक्ल है? रहन। एक शक्ल क्या है? कफील। कफालत की 2 किस्में हैं, कफालत बिल माल, कफालत बिन नफ्स। पढ़ा आपने? तो कफालत बिल माल क्या है? यानी आप कहें कि इसको छोड़ दो, ये कह रहा है 2 दिन में अदा कर देगा तो अदा कर देगा, और नहीं तो मुझसे ले लेना तुम। क्या ले लेना? मुझसे ले लेना। तो कफालत कहते हैं जम्मु जिम्मा इला जिम्मा। जम्मु जिम्मा इला, यानी पहले आप एक आदमी से मुतालबा करते थे, अब क्या कर सकते हैं? 2 आदमी से। यानी कफील से भी और असील से भी। हवाले में क्या होता है?
नकल जिम्मा इला जिम्मा, जम नहीं होता है, क्या होता है, नकल होता है। अब असील से आप मुतालबा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जिसके हवाले किया गया है उसी से मुतालबा करेंगे। इल्ला ये कि आपका हक जाये होने लगे, चेक दिया है, चेक बाउंस हो जाए, आप कहाँ आएंगे? उसी के बाद कम वक्त तुमने मुझको धोखा दिया है, बैंक में एक पैसा नहीं है, चेक थमा दिया है। हाँ, होता है ना, चेक बाउंस हो जाए तो लोग क्या डंडा लेके पहुंच जाते हैं। वालौ बिन नफ्स, अच्छा तो कफालत के किस्म क्या है, कफालत बिल माल। ये कहे कि जो कर्जा है इसका तुम्हारे, इसके जिम्मे तुम्हारा, ये नहीं अदा करेगा तो मैं अदा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसका नाम है कफालत बिल माल। अच्छा, कफालत बिन नफ्स में क्या होता है, पकड़े हुए कि आज जाने नहीं दूंगा, आज तो लेकर रहूंगा। वो कहते नहीं, छोड़ दो, मैं मिल जाऊंगा 2 दिन के बाद। कहा, अरे बड़ी मुश्किल से तुम मिले हो, भागे भागे फिरते रहते हो, नहीं जाने दूंगा, आज तो कर्जा लेकर रहूंगा। वो कहता है कफील नहीं, छोड़ दो, कह रहा है ना 2 दिन में, अगर ये 2 दिन में नहीं मिलेगा मैं पकड़ के लेके आऊंगा। ये नहीं, कर्ज नहीं अदा करने के लिए जिम्मेदारी ले रहा, बस क्या है, पकड़ के लेके आने की, एहजार हाजिर करने की क्या है, जिम्मेदारी ले रहा है। इसका नाम क्या है, कफालत बिन नफ्स। और दैन का के वसीके को जायज करार दिया रहन और कफील के जरिए, अगरचे कफालत बिन नफ्स हो। और जायज करार दिया है बाज दैन के सुकूत को सुलह के जरिए, या कुल को इबरा के जरिए, कुल को इबरा के जरिए सुलह करके क्या है, कुछ ले लें या कुछ माफ कर दें या पूरे को माफ कर दें। वले हाजत इब्तिदाई यमीनी ही, और यमीन के फिदिया की जरूरत की वजह से हमने जायज करार दिया है सुलह इनकारी को। कल हमने बतलाया था सुलह की 3 किस्में हैं। सुलह इनकारी में क्या होता है, मुद्दा मुद्दई के दावे को तस्लीम करने से इनकार करता है। अलबत्ता मुद्दई धमकी देता है कि अदालत में देख लेंगे आपको। ये बेचारा अदालत में जाने से बचना चाहता है और वहां सोचता है कि जाएंगे, कसम भी खा लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, अरे ये ठीक तमुल साहब जब बेईमान है, जाके अदालत में झूठी कसम खा लिए, हालांकि सच्चा रहेगा। तो क्या करना चाहता है आदमी, बेइज्जती से बचना चाहता है या अदालतों के चक्कर काटने से बचना चाहता है, तो क्या करता है वो, सुलह कर लेता है। बहुत से लोग हैं इस तरह सुलह कर लेते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में खास तौर से जो अदालतों का निज़ाम है, बिला वजह कोई दावा कर दे आप पे, 20-25 साल तक आपको दौड़ा सकता है बिला वजह। और 20-25 साल तक केस कहाँ रहेगा, जिला कोर्ट में रहेगा। आप समझते हैं कि बट से हाई कोर्ट पहुंच जाता है, बहुत कम केस हाई कोर्ट पहुंचते हैं। बहुत कम केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कुछ का तस्करा आ जाता है। उसके लिए क्या है, बहुत खर्च करना पड़ता है, पैसा पानी की तरह बहाना होता है। तो बूढ़े लोग कहते थे जिसका पैसा खर्चा ना हो तो वो मुकदमा शुरू कर दे या घर बनाना शुरू कर दे। क्या कर दे, मुकदमा शुरू कर दे या घर बनाना। बोरी का बोरी पैसा भर के लेके आएंगे, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वले हाजत इफ्तिदा, ये यमीन का फिदिया है गोया की, क्या है, कसम से बचना चाहता है, कसम नहीं खाना चाहता है, इसलिए सुलह करके उसका मुंह बंद कराना चाहता है। और जिसके लिए इजारा मशरू है, उसके फौत होने की वजह से, लेफक्द माशूरियतिल इजारा लह, जिसके लिए इजारा मशरू है उसके फौत होने की वजह से। इजारे का मकसद क्या है, जरूरत। इजारे का मकसद क्या है, जरूरत। यानी आपके पास मकान नहीं है तो किराए पे लेके रह लीजिए, ताकि आपकी रिहाइश की जरूरत पूरी हो जाए। आपके पास मकान है, आप दूसरे से कह रहे हैं कि तुम अपना मकान मुझको किराए पे दे दो, मैं अपना मकान तुमको किराए पे दे दूंगा। अब आपकी जरूरत तो पूरी हो रही है, आपके पास मकान है, फिर ये अदला बदली करने की क्या जरूरत है।
ये क्या है? बेजरूरत है। अगर कोई अदला बदली करता है इस तरह से तो ये इजारा जायज नहीं है, क्योंकि इजारे का जो मकसद है वो मकसद पाया नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मकसद है इजारे का, इस अदला बदली का भी क्या है? मकसद है। एक आदमी के पास जो है छोटा परिवार है लेकिन बड़ा मकान है, और एक के पास क्या है, ज्यादा परिवार है, छोटा मकान है। वो दूसरे से कहता है बाबा तुम अपना मकान किराए पे दे दो। क्या कर दो? तुम अपना मकान किराए पर दे दो। जाहिर है कि उसका बड़ा मकान है, किराया ज्यादा होगा। मुझे जरूरत है तुम्हारे मकान की, या तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी मेरे मकान से। या फर्ज कीजिए कि आजकल जैसे नौकरी लग जाती है, आजमगढ़ वाले की नौकरी लग गई घोसी में, घोसी वाले की नौकरी लग गई आजमगढ़ में, तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं भाई, घोसी वाले मकान में मैं रह लेता हूँ और आजमगढ़ वाले मकान में तुम रह लो, किराया कर लेते हैं अदला बदली। इसका किराया यहाँ, उसका किराया यहाँ। कुछ तफावत तो हो सकता है किराए में, लेकिन ये बिला जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, जरूरत की वजह से है। तो अगर अदला बदली भी हो बरबिनाए जरूरत तो इसकी क्या है, इजाजत है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, खा मखा का जो है वही सही अदला बदली आप कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सही नहीं है। जो इजारे का मकसद है वो नहीं पाया जा रहा है। अच्छा, इजारे का मकसद क्या है? उस चीज की जो मनफात है उससे फायदा उठाना। गाड़ी की मनफात क्या है? सफर करें आप उससे, क्या करें, सफर करें उससे। अब गाड़ी की ये मनफात गैर मकसूदा है कि अपने घर के सामने खड़ी कर दें उसको, पड़ोसियों को ये दिखाने के लिए कि ये मेरी गाड़ी है, BMW मेरे घर के सामने खड़ी है। ये गाड़ी किसकी है? किराए पे क्यों ले लिए हुए हैं आप? दिखाने के लिए, घर के सामने खड़ी करके मोहल्ले वालों में मशहूर करें कि ये गाड़ी क्या है, मेरी है। कोई जरूरत है ये? हाँ, उससे उसका मकसद नहीं है वो। गाड़ी का मकसद ये नहीं है कि आप क्या करें, घर के सामने खड़ी किए रहें दिखाने के लिए। समझ रहे हैं मुदाफिर साहब? ये मनफात गैर मकसूदा है, लेकिन लिहाजा इसके लिए कोई किराए पर लेता है तो ये जायज नहीं है। यानी इसके लिए तो मंगनी से भी काम चला सकता है, किराए पर लेने की क्या जरूरत है जब चलाना। हाँ, हाँ, नहीं चलाते रहे तब तो कोई मसला नहीं, खाली खड़ी किए रहे तब मसला है। अगर मुनाफे को उजरत करार दिया जाए जिन्स के इत्तेहाद के वक्त, हमने कहा कि जायज नहीं है। क्यों? लिफक्त माशूरियतिल इजारा ला, इजारे का जो मकसद है मनफात से फायदा उठाना, यहाँ ये मकसद हासिल नहीं हो रहा है। दोनों की जिन्स क्या है, एक है। वकुलना अल इजारा अला मनफातिन गैर मकसूदा मिनल ऐन ला तजूज, और हमने कहा कि इजारा करना आयन के मनफात गैर मकसूदा पे ये जायज नहीं है। लिल इस्तिगनाई अनहा बिल आरिया, आरियत के जरिए से इजारे से बेनियाज हो जाने की वजह से। इजारे क्या जरूरत है, दिखलाना ही चाह रहे हैं, मंगनी पे ले लीजिए, क्या कर लीजिए, मंगनी पे ले लीजिए। जैसा कि बज़ाज़िया के किताबुल इजारा से इस मसले को जाना गया है। जो उकूद होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक उकूद जायजा, एक उकूद जायजा मिनत तरफैन, एक उकूद लाजिमा मिनत तरफैन, एक उकूद जायजा मिन तरफ वाहिद लाजिमा मिन तरफ सानी। जायजा मिन तरफ वाहिद लाजिमा मिन तरफ सानी। उकूद जायजा का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसा मामला है कि दोनों आदमी जब चाहें कहें ये अपनी जिम्मेदारी लो, मुझे नहीं करना है। दोनों आदमियों को क्या होता है, इख्तियार होता है, जब चाहें इस मामले को खत्म कर दें दूसरे की मर्जी के बगैर। जैसे वकील और मुवक्किल है। मुवक्किल जब चाहे कह दे नहीं मैंने आपको वकालत से माजूल किया। वकील जब चाहे आपका सामान ला के आपके सर पे पटक सकता है कि नहीं साहब मुझे आपका काम नहीं करना। इसका क्या नाम है, उकूद जायजा।
उकूद लाजमा जैसे बै, बै हो गई, इजा हसलल ईजाब वल कबूल लसिमल बै। अब एक तरफा तौर पे कोई एक फरीक इसे खत्म करना चाहे नहीं कर सकता है। खत्म करने के लिए दोनों की रजामंदी से इकाला करना होगा। मैंने कहा कि इसका क्या है, उकूद लाजमा मिनत तरफैन, दोनों तरफ से ये क्या है, उकूद लाजमा है। बाज उकूद वो हैं जो एक तरफ से जायज होते हैं, एक तरफ से लाजिम होते हैं। एक तरफ से क्या होते हैं, जायज होते हैं, एक तरफ से लाजिम होते हैं। जैसे कि कोई अपने गुलाम से कह दे कि तुम जो है इतने 1000 रुपया अदा कर दो तो आजाद, यानी किताबत, क्या है, किताबत। ये आका की तरफ से अब लाजिम है, गुलाम की तरफ से जायज। यानी गुलाम जब चाहे करे नहीं मुझे पैसा नहीं दे, मुझे गुलाम ही रहना है, लेकिन आका इसे वापस लेना चाहे नहीं वापस ले सकता है। अब आका के लिए क्या है, लाजिम है, अगर वापस लेना चाहता है तो गुलाम की मर्जी जरूरी होगी। शौहर कहे अपनी बीवी से कि इतना पैसा अदा कर दो, मैं तुमको खुला दे दूंगा या दे रहा हूं, ये भी क्या है, शौहर की तरफ से लाजिम है, बीवी की तरफ से जायज है। यानी शौहर कहे नहीं नहीं मेरी मर्जी खत्म हो गई, अब नहीं नहीं तुम खुला दूंगा तुमको, नहीं, ये ईजाब हो गया। अब इसको कबूल करना ना करना कौन है, औरत की तरफ से है। शौहर अभी इसको रुजू नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता है। तो शौहर की तरफ से लाजिम है, बीवी की तरफ से जायज है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये भी तखफीफ का तकाजा है कि कुछ उकूद को लाजिम रखा जाए, कुछ उकूद को जायज कहा जाए। ये भी क्या है, तखफीफ का तकाजा है कि कुछ उकूद को क्या रखा जाए, लाजिम रखा जाए, कुछ उकूद को जायज कहा जाए। अगर हर अक्द को लाजिम कर देंगे तो लोग परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, हर अक्द को जायज कह देंगे तब भी परेशानी हो जाएगी। अब वकालत को लाजिम कह देंगे तो कोई आदमी जल्दी वकील बनने के लिए तैयार नहीं होगा। बाबा एक मर्तबा फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल। मदरसे की मदरसी भी उसी में शामिल है, ये जायज है। ये क्या है, जायज है। चाहे मुदर्रिस जब चाहे उसे तोड़ दे, चाहे नादिम साहब जब चाहे भगे, नहीं साहब आपकी जरूरत नहीं है, ये सब ये भी क्या है। लेकिन जो वकूद क्या है, जाब्ते वगैरह मुतय्यन है, उनकी पाबंदी जरूरी है। यानी उन जाब्तों का लिहाज रखना जरूरी है कि अगर किसी को भगाना है तो 2 महीना पहले का कानून है कि 2 महीना पहले उनको जो है देना हो, नोटिस देनी होगी, भाई अब आपकी जरूरत नहीं रही, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। या उस्ताद कहें कि नहीं साहब अब हम आपके यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, आप अपना इंतजाम कर लीजिए, ठीक है। यानी कोई किसी जबरदस्ती नहीं करा सकता है, एक तरफा तौर पे फर्ज कर सकता है वो। इजारे में क्या है, आजारे मारूफा की वजह से जो आजार हैं उनमें से कोई इजारे को फर्ज करना चाहे तो फर्ज कर सकता है। मैंने कहा ना वही, वरना तो कोई आदमी तैयार होगा जल्दी, अरे भाई नहीं वो मदरसी है फंस जाएंगे फिर क्या है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं साहब, रास्ता खुला हुआ है, अब आइए, जब चाहिए चले जाइए, कोई मसला नहीं है। ये क्या है, उकूद जायजा में से। भाई की हमने मिसाल दी कि भाई क्या है, उकूद लाजिमा में से। भाई अगर उकूद लाजिमा में से ना हो तो एक आदमी जमीन खरीद के मकान बनाएगा, लेकिन रोजाना सुबह में उसको डर लगा रहेगा कि कब वो बैग को तोड़ करके कहे कि नहीं मकान, ये अपना मकान गिरा के मुझको जमीन वापस कीजिए। मामला करार पाएंगे लोगों के, खरीदो फरोख्त के, हर आदमी क्या रहेगा, डरता रहेगा, कम मूड बदल जाए और कहे कि नहीं मेरी जमीन क्या करो, वापस करो। जैसे कि बच्चे जब दोस्ती रहती है तो एक दूसरे को टॉफी खिलाते हैं, और थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं जो टॉफी तुमको दिया था वापस करो। हाँ, कहते हैं ना, जो टॉफी हमने तुमको खिलाई थी वो क्या करो, वापस करो। अब इसी तरह का मामला बै का हो तब तो बड़ा मसला हो जाएगा। वमिन तखफीफ जवाजुल उकूदिल जायजा, और तखफीफ ही में से है उकूद जायजा का जवाज, लिअन्न लुज़ूमहा शाक़ुन, इसलिए कि उसे लाजिम करना दुश्वारी का सबब है। फतकून सबबन लिअदम तातीहा, ये उसके अदम ताती का सबब बन जाएगा। अब कोई वो मामला करना ही नहीं चाहेगा कि नहीं साहब गर्दन फंस जाएगी अगर उस काम में हम हाथ लगाएंगे तो।
तो ना कोई वकील बनना चाहेगा, ना कोई अजीर बनना चाहेगा, ना कोई मुदर्रिस बनना चाहेगा। और तख्फीफ में से है लाजिमा का लुजूम, जवाजुल उक़ूदिल जायज़ा व लुजूमिल लाजिमा, व इल्ला लम यस्तक़िर बैउन, वरना तो कोई बै किसी बै को करार नहीं रहेगा और न दूसरी चीजों को। वक़फ़ना, और हमने मौकूफ करार दिया है वकील की माजूली को उसके इल्म पर। माजूल कर सकता है, हमने कहा ये उकूद जायजा में से है, किसमें से है? हाँ, मुवक्किल जब चाहे वकील को माजूल कर दे, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए ना, वकील को क्या होना चाहिए? माजूल होना चाहिए, वरना तो आपके हुक्म के मुताबिक वो काम करता जाएगा और फिर आप कहेंगे नहीं साहब आपका काम करना गलत है इसलिए कि हमने तो माजूल कर दिया था। ये सही नहीं है। आजकल के जो मामलात हैं, किसी को वकील बना दिया तो फिर उसको माजूल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो कम वक्त क्या है, चींटे की तरह से चिमट जाता है, बल्कि जोंक की तरह से चिमट जाता है, आपका खून पीता रहेगा वो।